Am I audible? Yes, sir. Okay. Can you see the screen? Can you see the PPT? Yes, sir. Okay. So we don't have in-semester examination for this subject. Okay. But let us see how we can go. Definitely, we will have to work on this particular subject to get good results. Okay. So we may conduct multiple class tests. That is a possibility. Then next is we have end semester examination for 50 marks. Okay. uh, and this will be MCQ based only. Okay, though this subject is not suitable for MCQ questions, but still because of this pandemic situation, uh, this particular subject will be having online MCQ test only. Okay, that is a challenge with us how to frame out the questions. Okay, like those things. Then we have practical marks. Okay, practical of 25 marks. So again, based on your submission, we are going to give you these 25 marks. Okay, so I hope it is clear for all of you. So then this is what we had discussed. Then these are our course objectives. You can later on you can go through this, which is there on the our Google Classroom. How many of you have joined the Google Classroom? Sir, me. I have done it. Yes. How many of you have joined the Google Classroom? Sir, me. Okay. Okay. Kindly raise your hands. Good. So number is good. Okay, those who have not joined yet, they can join it. Okay, today you can join it. Still, that Google Classroom needs to be updated. This is the previous year's Google Classroom. So as the day progresses, I am going to update that Google Classroom. Okay, so you are going to see the different materials in the upcoming days over there. Then these are our course outcomes. Okay, previous are the course objectives and these are nothing but the course outcomes. Now you can raise your you can lower your hand. Okay, then this is what is the syllabus. The big thing what is we are going to discuss is what is nothing but the syllabus. Now just a minute. Okay, so this is what is our unit number 1, which is nothing but the fundamentals of an engineering drawing. Okay, maybe in the next lecture we are going to discuss on this particular subject what exactly the engineering drawing is. Okay, now all of you have heard this word drawing. Is there anyone who has not heard about this word drawing? ड्राइंग ये वर्ड सुना है आपने कभी? शायद आप में से बहुत लोगों ने ये किया भी होगा. You might have drawn nature's drawing. You might have drawn n number of drawings, isn't it? किया है ना? Yes, sir. उसमें सिर्फ अभी हमने Yes, सिर्फ ये एक वर्ड sir. ऐड किया हुआ है. We have added one more word that is nothing but the engineering drawing. तो ड्राइंग ही करना है हमें. जो आपने किया था, जो आपने पहले किया था, उसी को हमें रिपीट करना है. सिर्फ उसमें हमारे इंजीनियरिंग वाले स्पेक्स से देख के ड्रॉ करना है. ठीक है, हमारा अभी चश्मा बदल गया है. मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि आपका चश्मा अभी बदलना चाहिए. हर कोई चीज अगर आप देखोगे तो उसको एक इंजीनियर पर्सपेक्टिव से आपको देखना है. तो वो ट्रेनिंग अभी इस सब्जेक्ट में तो पूरे की पूरी होने वाली है. तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो इंजीनियरिंग स्पेक्स से देखना है, और जो आप इंजीनियरिंग स्पेक्स से देखोगे वो आपको ड्रॉ करना है. दैट इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग ड्राइंग. इन डेप्थ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. ठीक है, बट एक थोड़ा सा मोटा मोटा मैं अभी आपको समझा के देता हूँ कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. ओके, देन दिस इज व्हाट इज आवर यूनिट नंबर 2. ओके, introduction to 2D and 3D computer aided drafting packages.
सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग पैकेज। मतलब क्या, हम लोग एक सॉफ्टवेयर सीखेंगे जिससे हम लोग ये ड्राइंग जो है वो ड्राइंग कर पाए। ओके, नाउ यू टेल मी, जब आपने ये वाला ड्राइंग किया था तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो कंप्यूटर में अगर आपको ड्राइंग करना है तो बताइए। पेंट, वेरी गुड। ब्लेंडर सॉरी, AutoCAD, नहीं सर, ब्लेंडर। ये वाले ड्राइंग के लिए, यस यस यू आर करेक्ट। ये वाले ड्राइंग के लिए पेंट है, ब्लेंडर है, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप ये वाला ड्राइंग जो है वो आप ड्रॉ कर पाओ। ओके, बट उसी के जैसे इंजीनियरिंग वाला ड्राइंग अगर हमें ड्रॉ करना है देन वी हैव मल्टीपल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, isn't it? But out of those we are going to study the AutoCAD software, and mainly we are going to focus on the 2D thing, isn't it? 2D वाला हम लोग सीखने वाले हैं। 3D वाला दो इट इज देयर इन द सिलेबस, हमें टाइम बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है ये 2D वाला खत्म करने के लिए ही। So let us see if time permits we will discuss this 3D thing also. Okay, तो ये सेकेंड यूनिट में पूरा का पूरा जो यूनिट है वो AutoCAD वाला सिस्टम है। ठीक है, अभी बेसिक रिक्वायरमेंट इस सब्जेक्ट के लिए क्या होगा आपको, जैसे कि आपको पीपीएस सब्जेक्ट था तो पीपीएस सब्जेक्ट में आपने क्या किया। अच्छा, आपने पीपीएस सब्जेक्ट पढ़ा है क्या बाय द वे? नहीं, अभी पढ़ने वाले हो? हाँ नहीं सर, ये अच्छा, अभी पढ़ने वाले हो। ओके, तो पीपीएस के लिए जैसे आपको प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, एक डेस्कटॉप चाहिए या फिर सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए। आप मोबाइल में कर सकते हो क्या प्रोग्रामिंग? आई एम नॉट अवेयर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं कर सकते ना शायद। सर है कुछ एप्लीकेशन जो देते हैं टर्मिनल कुछ टाइम के लिए। ओके गुड, तो वैसे कुछ एप्लीकेशंस है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए भी, बट मैंने आज तक कभी ट्राई आउट नहीं किया। बट अगर आप इफ यू आर फ्रॉम द सिविल और मैकेनिकल बैकग्राउंड, इवन दो ईएनटीसी वाले भी अगर है ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड उससे भी ज्यादा ऊपर ये सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेनिकल सिविल इन लोगों को मैं बोलता हूँ कि ये सब्जेक्ट आपके खून में होना चाहिए। मतलब ये जब आप पढ़ोगे तो आपको कभी कभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं बाद में उसको भूल जा सकते हैं। भूलना नहीं चाहिए, ऐसे में नहीं करो कि आपको भूलना चाहिए, बट इट इज ओके इफ यू फॉरगेट अगेन। अगर कहीं आपको लगा वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट लगी इन फ्यूचर इन योर डे टू डे लाइफ ऑफ योर ऑफिस, आप वो रिकॉल करके या पढ़ के फिर से आप वो कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, पढ़ के आप उसके रेफरेंसेस लेके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट ये ऐसा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको आपको भूलना ही नहीं है। इट हैज टू बी देयर इन योर ब्लड, इजंट इट? हमेशा आपको ये चीज लगने ही लगने वाली है, तो इसको आपको भूलने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इफ यू आर फ्रॉम कॉम्प एंड आईटी, यस, आप अगर इस सब्जेक्ट को भूल जाओ तो भी चल जाएगा। बट अगर आप सॉफ्टवेयर में जाते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर जाते हो और आप इफ यू लैंड इनटू द मैकेनिकल सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी, देन यू विल नीड दिस, इजंट इट? तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए जरूरी हो सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 2। देन यूनिट नंबर 3, in unit number 3 we have engineering curves. Okay, in our day to day life कोई भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी प्लेन शेप का नहीं होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप, ऐसा प्लेन शेप का नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कर्व्स होते हैं। ठीक है, तो वो कर्व्स शायद आपने मैथमेटिक्स 1 में EM1 में कुछ कर्व्स आपने पढ़े होंगे या फिर EM2 में पढ़ोगे या फिर M3 में पढ़ोगे। ठीक है, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना ये आप पढ़ोगे, बट यहाँ पर वो कर्व ड्रॉ कैसे करना है ग्राफिकल वे से, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, देन नेक्स्ट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर इज नथिंग बट द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग इंजीनियरिंग स्पेक्स से देखते हैं तो उसके अलग अलग व्यूज बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो वो वाले व्यूज ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके लिए सिस्टम कौन सी है,
ठीक है ना। तो फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, देन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड, इनके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग मशीन एलिमेंट्स और द पार्ट्स। बट अभी ऐसा बोल नहीं सकता मैं, एक्चुअली आई एम सॉरी, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, सो इट इज बिग क्वेश्चन फॉर अस। ठीक है, कुछ कुछ पोर्शन हम लोग देखेंगे प्लेन, लाइन, सॉलिड्स का भी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज इट इज एन ऑनलाइन थिंग, हो मीन्स देर इज अ नो लिमिट टू आस्क क्वेश्चंस, तो ये वाले भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देन मोस्टली जब ऑफलाइन था तो सिर्फ मशीन एलिमेंट्स ही हमने डीप में पढ़ा था, क्योंकि वो इटसेल्फ, ये सब्जेक्ट इटसेल्फ बहुत बड़ा है, तो उसके लिए लिमिट नहीं है, बट अभी हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। सी इन 2012 पैटर्न, नाउ yours is 2019 pattern. In 2012 pattern we have one unit for this, projections of lines, then we have one unit for this, projections of planes, and then we have one unit for this, projections of solid. ठीक है, ये तीनों यूनिट्स को क्लब करके एक यूनिट का सब टॉपिक बना दिया है अभी इस 2019 के सिलेबस में। So can you imagine the challenge for us, we as a teacher, and then challenge for you people, you as a student. तो अभी इसके ऊपर कुछ भी बोल नहीं सकते, ठीक है, but that is what we have to face. This is what is the package of COVID-19. So we have to face, isn't it? Then next is unit 3. अगर एक शॉर्ट में अगर मुझे इसको बताना है आपको, सो यहाँ पे हम लोग 3D से 2D में जाते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग 3D से 2D में जाते हैं, ओके, एंड देन उसका एग्जैक्टली रिवर्स वी गो इनटू द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। मतलब आपको 3D ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसका आपको 2D डायग्राम्स, सॉरी उल्टा, यहाँ पर आपको 2D डायग्राम्स दिए गए होंगे, उससे आपको 3D डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट यूनिट इज डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नाउ एनी वन ऑफ यू हैव विजिटेड मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, ऐसे कुछ आपने विजिट किया है कभी गलती से? Yes, sir. प्रायर टू Yes, sir. यस, तो आपने विजिट किया होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि 90 to 95% ऑफ द मॉल्स और द मल्टीप्लेक्स हैव एयर कंडीशंस, इजंट इट? सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन उसमें यूनिट होता है, ओके। या फिर अगर आप कभी भी होटल में गए होगे, तो होटल में जो भी किचन है, उस किचन में जो कुछ भी फ्लेम्स होती है या फिर जो कुछ भी होता है, एयर होती है, नॉर्मल एयर, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए एक सिस्टम होती है। ठीक है, बाकायदा एक सिस्टम होती है वहां पे। तो वो सिस्टम डेवलप करने के लिए आपने कुछ डक्स देखे होंगे। ठीक है, कहाँ पर? होटल्स में देखा होगा, मॉल्स में देखा होगा, या फिर मल्टीप्लेक्स में देखा होगा। ठीक है, तो वो डक्स किसके होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ शीट्स, इजंट इट? तो वो शीट को उस तरीके का शेप देने के लिए it has to go through this particular process. It has to go through the development, isn't it? So that development we are going to discuss in this particular unit. Okay, so this is what is our syllabus. ठीक है, do you have any doubt in it? कुछ doubt है इसमें? No, sir. कुछ डाउट नहीं, वेरी गुड। बट मुझे डाउट है, बट वो डाउट अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। क्या डाउट है? सी बेसिकली व्हाट वी आर टोल्ड दैट फॉर ऑनलाइन थिंग, ओके, वी हैव दीज टॉपिक्स फॉर आवर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इजंट इट? पहले 4 यूनिट ही है ना, बराबर है ना? बट ग्राफिक्स का, यस, ग्राफिक्स के लिए कैसा था कि जब ग्राफिक्स 2019 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, उस टाइम पे ये जो है यूनिट नंबर 3 टू यूनिट नंबर 6, ये वाला पोर्शन सिर्फ एंड सेम के लिए था। नाउ वी एज एन टीचर वी आर इन कंफ्यूजन स्टेट whether we have to follow this thing
or whether we have to follow this thing that we are not aware. ठीक है, बट अगर आपको ये वाला भी ये वाली भी अगर यूनिट नंबर 3 टू यूनिट नंबर 6 भी अगर पढ़ाना है, so without this we can't teach you. So ultimately our syllabus will be unit number 1 to unit number 6. ठीक है, जैसे ही कुछ हमें अपडेट मिलता है सब्जेक्ट चेयरमैन से या फिर यूनिवर्सिटी से, आई विल लेट यू नो ड्यूरिंग अवर व्हाट वी कैन से ड्यूरिंग अवर लेक्चर्स. आई विल लेट यू नो अबाउट इट कि हमें एग्जैक्टली कौन सा सिलेबस एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, इफ आई एम द एग्जामिनर, मुझे ये यूनिट नंबर 3, 4, ये नीचे वाले 3, 4, 5, 6 इनके ऊपर एमसीक्यूज बनाना बहुत डिफिकल्ट है. एमसीक्यूज यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 में तो भी कुछ तो भी बना सकते हैं, but I don't know what will be the syllabus for you people, but still we will try to cover up all the 6 units. Let us see how the time permits. ठीक है, this is what is all about our syllabus. Next, आपका सब लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, सर कौन सी बुक रेफर करनी है. ठीक है, तो बुक्स रेफर करने के लिए आई हैव द सॉफ्ट कॉपी of this book, first book, N.D. Bhatt. इसका मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है. आई एम ट्राइंग टू गेट दी मल्टीपल सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द डिफरेंट बुक्स, isn't it? तो वो अगर मेरे पास मुझे अवेलेबल होती है, आई विल शेयर यू थ्रू द गूगल क्लासरूम. इफ अगर आपको कहीं से आपके सोर्सेज से या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके किसी और फ्रेंड के टीचर से अगर आपको ये किसी भी कोई भी बुक अगर मिलती है इंजीनियरिंग ड्राइंग रिलेटेड, देन यू कैन शेयर इट विथ मी सो दैट आई कैन पोस्ट इट ऑन द गूगल क्लासरूम. तो सब लोगों को वो मिल जाएगी. ठीक है, बट कहीं से भी फिजिकल बुक अगर आपको परचेस करनी है, देन यू कैन गो फॉर दिस और यू कैन गो फॉर लोकल ऑथर बुक ऑल्सो, बट टोटली चॉइस इज ऑन यूअर्स. चॉइस इज यूअर्स, isn't it? बिकॉज ये लोकल ऑथर बुक्स में भी बहुत सारे अलग अलग बुक्स है, तो उसमें भी जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, यू कैन गो फॉर दैट बुक, isn't it? बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय, इफ यू आस्क माय ओपिनियन, आई विल नॉट रेकमेंड एनी ऑफ द बुक टू परचेस, isn't it? अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, यू कैन गो थ्रू इट, बट परचेस करने की जरूरत अभी नहीं है. थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी दिन अगर 1-2 हफ्ते जाते हैं, देन यू कैन टेक द डिसीजन कि आपको कौन सी बुक परचेस करनी है. ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क प्लीज. Nobody has doubt? Good. सर Yes. इस सब्जेक्ट के लिए लैपटॉप कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है. कंपलसरी सी देखो, अगर मैं कंपलसरी बोलूँ तो आप बोलोगे, आप मम्मी डैडी से क्या करोगे, आप थोड़ा सा जिद करोगे कि मुझे लैपटॉप चाहिए, हमारे टीचर ने बोला है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है. तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपके नियर बाय फ्रेंड्स के पास है, तो आप दोनों बैठ के उस ऑटोकैड के ऊपर काम कर सकते हो, पीपीएस के ऊपर काम कर सकते हो. ठीक है, तो मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं है, बट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, देन यू कैन हैव दिस. लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है या फिर फ्रेंड सर्कल में है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. बट मैंडेटरी ऐसा नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर मैं मैंडेटरी बोलूंगा तो आई हैव टू कंसिडर ऑल द सिचुएशंस, करंट सिचुएशंस, मार्केट में अभी जो सिचुएशन चल रही है वो सब कंसिडर करके. बट इफ नॉर्मल अगर डेज होते थे, तो अगर प्रैक्टिकल्स में हम लोग कॉलेज में ही आपको ऑटोकैड की प्रैक्टिस करवाते थे. ठीक है, बट ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? If you don't have a question, you can mark yourself present in the Google form and you can leave the meeting. Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Yes, thank you. Bye. Thank you, sir. Yeah, bye.